Okay, friends, now we are going to discuss some more words. They are starting from the alphabet A. The first word is Aaronic. I would like to say that maybe my pronunciation is not correct, but in these audios we are going to focus on improving our vocabulary. Okay, so in this process I will tell you the word and I will also spell it. I will tell you which part of speech it belongs to and I will tell you the meaning of that word. So the first word is Aaronic, Aaronic. It is basically an adjective. Okay, and the meaning of Aaronic is relating to or characteristic of a high priest. Okay, it means relating to or characteristic of a high priest, or you can also say it as pertaining to priesthood. Pertaining to priesthood. We all know what priest is. Okay, are those persons who provide the services of doing prayers at religious places. Now next word is Asvogel. I will again repeat it. The next word is Asvogel. I will spell it Asvogel. Asvogel. Basically it is a noun. Okay. Now what does Asvogel means? It is the name of a South African vulture. Asvogel is a name of a South African vulture. I will again repeat the spelling Asvogel. Okay, friends. Now, the third word that we are going to discuss today is Abaca. Abaca. What is Abaca? Abaca. Basically, Abaca is a noun and it is a large herbaceous Asian plant of the banana family, yielding Manila hemp. Basically, it is a plantation which is grown in the Philippine Islands. It is a plantation that is grown in the Philippine Islands. Okay, friends. Now, next is, friends, Abac. Aback. Abac. Now, what is Abac? First of all, the Abac belongs to the part of speech adverb. And the meaning of Abac is taken by surprise. Taken by surprise. In order to understand more the meaning of this word Abac, we can just have a usage of it in a sentence. By using the Abac in a sentence, we can be more sure about its meaning. Very simple meaning of Abac is taken by surprise. Okay. Now you can say that he was taken aback by her caustic remarks. Something which is said to us that we are not expecting to be said to us, then we are a little bit surprised at that thing. That is what is meant by aback. That is something which takes us by surprise. Okay, friends. Now, next comes the word Abaddon. Okay, Abaddon. I will spell it. It is Abaddon. Abaddon. Now, basically, Abaddon is a noun. Abaddon is a noun, and it means hell. Basically, it is a place of destruction. You can say the depths of hell. We all know what hell is. Narak, in Hindi we say it. So basically, it is a place of destruction. Now, friends, coming on to our next word. The next word is abandon. This is very easy. Abandon. Abandon. We all know what abandon means. Abandon is basically a verb and it means to give up. Okay, to give up. There are many more meanings of this, like to leave completely and finally, or to desert someone. The usage in a word is to abandon one's form, or you can also say to abandon a child, or you can say to abandon a sinking ship. That means to give up, discontinue, withdraw from, or you can also say to give up the control of anything, or you can also say to yield oneself without restraint or moderation. To cast away, leave, or desert as property. So these are the different meanings of abandon.
Now, if you want to know what are the synonyms of abandon, the synonyms of abandon are, desert, DESERT, then relinquish, RELINQUISH, then renounce. These are the synonyms of abandon. The antonyms of abandon will be to keep with ourselves, keep, then continue, begin, start, retain. These are the antonyms of abandon. Okay, friends. Now, the next thing that we are going to discuss today is the word is abase. ABASE. Now, what is the meaning of this abase? Now, this abase belongs to the verb part of speech. Okay, it means to reduce or lower, as in rank, office, reputation, or estimation. That is to humble someone or to degrade someone. Okay, so abase means to degrade someone, to lower someone, or to put or bring down someone. The synonyms of abase are humiliate, dishonor, defame, or belittle. Okay. Okay. So this was the meaning of abase. Next comes the word abash. 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 What does this word abash means? Now, friends, abash belongs to verb form, and it is to strike with shame or embarrassment. To strike with shame or embarrassment. To destroy the self-confidence or self-possession of, or you can also say to disconcert someone, or you can say make ashamed or embarrassed. These are the meaning of abash. The synonyms of abash are shame, discompose, embarrass. To embarrass someone, you can say this is the meaning of abash. Now, after the abash comes the word abate. ABATE. Next comes the word abate. ABATE. What does this abate means? So we are discussing about the word abate. Now, what is the meaning of abate? Abate means to subside, or you can say to mitigate, or also to lessen or to reduce. Okay, that is to reduce in amount, to in degree or in intensity, lessen something or diminish something. You can use it like to abate a tax, or you can also say that to abate one's enthusiasm. Now, abate is also used in meaning of law. In meaning of law, it means that to put an end or to suppress a nuisance. Nuisance means nuisance spells as NUISANCE. It means something of an irritating nature or something of an irritating, ambience. Or you can say that in that meaning of law, abate means to end or to make null and void. It can also say that its meaning is to diminish in intensity, violence, amount, etc. The synonyms of this word abate are decrease, weaken, subside, and the antonyms are, obviously these are very easy, it is increase or intensify. Now next comes the word abey, ABBEY. Next comes the word abey, ABBEY. Now the part of speech to which abey belongs to is noun. It means a convent under an abbot or abbess. Now here comes two words. First comes what is abbot, or second comes what is abbess. The spelling of abbot is ABBOT, and the spelling of abbess is ABBESS. Now what is abbot and abbess? Now abbot, ABBOT, meaning father, is an ecclesiastical title given to a head of a monastery in various traditions, including Christianity. The office may also be given as an honorary title to a clergyman who is not actually the head of a monastery. So basically, in the church, the fathers, that are in charge of a monastery, or basically
those persons, those clergymen who are given honorary title, they are known as abbot, meaning father of a church, you can say it. Okay, so this is the meaning of abbot. Now, what is the meaning of abbess? The spelling of abbess is ABBESS. Now, abbess in Christianity is the female superior of a community of nuns, which is often an abbey. Okay. So basically, she is a female superior of a community of nuns, which is often an abbey. Now, coming back to abbey. Abbey is a monastery under the supervision of an abbot or a convent under the supervision of an abbess. I will again repeat, this is very important. A monastery under the supervision of an abbot is also called an abbey, or you can say a convent under the supervision of an abbess is also called an abbey. Or the second meaning you can say is the group of buildings comprising such a monastery or convent, or you can also say the church of an abbey. So basically it is some sort of related to, you can say, a worship place in Christianity. Now next comes the word abbot. I have already told you the meaning of abbot, ABBOT. Next comes the meaning abbreviate. The word comes abbreviate. Now abbey and abbot both were nouns. Next is abbreviate, ABBREVIATE. This is a verb. Abbreviate is a verb. It means to shorten or to abridge. Abbreviate means to shorten. In this thing you can say that abbreviate means, telling the crux of something. There is one thing is also known as detailed explanation, in which you are going to explain everything in detail to someone. But when you need to tell something in short to someone, then you have to abbreviate that explanation. That means telling something in short. It is said that to shorten a word or phrase by omitting letters, substituting shorter forms, etc., so that the shortened form can represent the whole word or phrase. And you can also say to reduce anything in length, duration, etc., or make it briefer. इसका मतलब यह है कि यार आपको किसी चीज को कम शब्दों में समझाना है, छोटे शब्दों में समझाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में किसी चीज को नहीं बोलना है, बहुत कम चीजों में से बोलना है. इसका सिनोनिम अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब सिनोनिम होता है शॉर्टन. द सिनोनिम ऑफ एब्रीविएट इज शॉर्टन. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द वर्ड abdicate. It is very easy. ABDICATE, abdicate. अब ये abdicate का मतलब कार्ड. What is the meaning of abdicate? It means to renounce or give up office or dignity. यानी किसी चीज को छोड़ देना, renounce कर देना, ये होता है abdicate करना. ठीक है, तो abdicate का मतलब है कि आप किसी चीज को renounce कर दे रहे हैं, किसी चीज को छोड़ दे रहे हैं. अब abdicate किस चीज को छोड़ रहे हैं? अब आपसे ये हो सकता है कि आप किसी ऑफिस को छेड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और आपने उस स्कूल के प्रिंसिपलशिप से रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो आपने उस ऑफिस को एब्डिकेट कर दिया, आपने उसे छोड़ दिया. कोई एक राजा है, उस राजा ने अपनी थ्रोन छोड़ दी, ठीक है, अपनी गद्दी छोड़ दी किसी और के लिए, तो उसने क्या किया, उस थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया. तो ये एब्डिकेट होता है. इसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? टू रिनाउंस और रिलिंक्विश अ थ्रोन, a right, a power, a claim, a responsibility or the like, especially in a formal manner. आप समझ सकते हैं कि यहां पे relinquish a throne को भी, यानी गद्दी को भी, right को भी, यानी किसी चीज की पावर को भी, किसी claim को भी, किसी responsibility को भी, और किसी भी और चीज को इस तरीके से. यानी इसका बहुत वाइड मीनिंग है. क्लेम इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी बिक्वीथ की. बिक्वीथ मतलब आपके पेरेंट्स ने आपके नाम कोई विल रखी है, ठीक है, और आपने अपनी मर्जी से उस विल को अपनी बहन के नाम कर दिया या अपने छोटे भाई के नाम कर दिया, तो आपने क्या किया, उसको एब्डिकेट कर दिया. तो ये मीनिंग होता है एब्डिकेट का. ठीक है, तो एब्डिकेट का ये मीनिंग हो गया. उसके बाद आता है एबडक्ट. एबडक्ट का क्या मतलब है? एबडक्ट बहुत आसान मतलब होगा इसका. एबडक्ट मतलब होता है टू किडनैप. ठीक है, यानी किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपने साथ ले चलना. ठीक है, और वो किसी चीज का डर दिखा के उसे ले चलना. अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी को एबडक्ट करते हो, किसी को किडनैप करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उससे पूछ के तो करोगे नहीं, उसकी मर्जी से तो करोगे नहीं. वो अपनी मर्जी से नहीं आएगा आपके साथ. अगर वो आपके साथ अपनी मर्जी से आता है तो उसको आप एबडक्शन नहीं कह सकते, उसको आप किडनैप नहीं कर सकते.
अगर आप उस पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको चाकू दिखा रहे हैं, गोली मार रहे हैं, ठीक है, और उसको रस्सी से बांध के मुंह दबा के लेके जा रहे हैं, तो ये एबडक्ट करना होता है। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा सर? टू कैरी ऑफ और लीड अवे अ पर्सन इलीगली और एंड इन सीक्रेट और बाय फोर्स स्पेशली टू किडनैप, यानी किसी को किडनैप कर लेना जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ, इसको हम बोलते हैं एबडक्ट। अच्छा, अगला आ जाते हैं एबेरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एबेरेशन, ABERRATION। द मीनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच टू विच दिस वर्ड एबेरेशन बिलोंग्स टू इज नाउन। ये एक नाउन है एबेरेशन। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। वैसे तो एबरेशन का मतलब इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो है टू द डिविएशन फ्रॉम द यूजुअल, नॉर्मल और राइट कोर्स, डायरेक्शन और बिहेवियर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कई सारी मीनिंग है इंग्लिश में। मैं उसको रिपीट कर करके आपके सामने बोलूंगा ताकि ये चीज आपको क्लियर होती रहे। तो पहला मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम द राइट, नॉर्मल और यूजुअल कोर्स। दूसरा क्या कह सकते हैं? द एक्ट ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी, यूजुअल और नॉर्मल टाइप। थर्ड हो गया डिविएशन फ्रॉम ट्रुथ और मॉरल रेक्टिट्यूड। अगला हो गया मेंटल इरेगुलरिटी और डिसऑर्डर, स्पेशली ऑफ अ माइनर और टेम्पररी नेचर, लैप्स फ्रॉम अ साउंड मेंटल स्टेट। ठीक है यार, तो इसमें अब आप ये देखोगे यार कि एबरेशन का जो मतलब निकल रहा है इन सब से, कि ये सब बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम द राइट, यानी कि आप राइट पाथ से कुछ डिपार्ट हो रहे हो, कुछ अलग हो रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है और आप रोज किसी एक काम को किसी एक पर्टिकुलर तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने बस पकड़ी, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए, और वो बस आपको 1 घंटे में ऑफिस पहुंचा रही है। किसी दिन आप लेट हुए, ठीक है, और अब आपके पास, अगर आप बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं तो आपको 1 घंटे के बजाय आधा घंटा लग जाएगा। 1 घंटे के बजाय आप आधे घंटे ऑफिस लेट पहुंचेंगे। तो अब आप ऑफिस लेट नहीं पहुंचना चाहते, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उस दिन आप अपनी बाइक से चले जाओगे ऑफिस, या आप अपनी कार से ऑफिस चले जाओगे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? एक एबरेशन है कि आप जो यूजुअली रोज कर रहे थे, जो नॉर्मली रोज कर रहे थे, यानी जो आप नॉर्मली रोज बस पकड़ के जा रहे थे, आज आप अपने उस तरीके से डेविएट कर गए। आज आपने दूसरा तरीका अपना लिया अपनी कन्वीनियंस को सेट करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या हो गया? एबरेशन हो गया। अब जरूरी नहीं है ये एबरेशन को आप रोज के यूजुअल से अलग करना कहें। जो एक ऑर्डिनरी चीज है उससे का अगर आप कुछ अलग करते हो तो वो एबरेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि छोटे से हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं यार कि आपको बड़े होके कुछ बनना है, ठीक है, कुछ बड़ा बनना है। तो अब आपको लगता है यार कि हमें बड़ा होना है, हमें बड़े होके कुछ बनना है। ठीक है, अब नॉर्मली पेरेंट्स ये बोलेंगे कि यार 10th करो, 12th करो, 12th में ज़्यादा नंबर लाओ, ठीक है, फिर आप इंजीनियरिंग करो, फिर आप एक नौकरी पकड़ो। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आए, उनके हिसाब से ये चीज़ सही ना हो, तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपना पाथ चुनेंगे। किसी को फोटोग्राफी करनी है, किसी को एक्टिंग में कैरियर बनाना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है। ठीक है, तो अगर वो जो नॉर्मली सब बच्चे कर रहे हैं उससे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं अपने कैरियर में, तो वो भी एक तरीके का एबरेशन है कि आपने एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्टैंस है, या फिर जो कहते हैं जो राइट स्टैंस है, या जो कहते हैं मॉरल स्टैंस है, इसी तरीके से अगर कोई चीज़ को कोई एक मॉरल वे में करने को कहा जाए कि ये आप अगर कोई एक काम आप किस तरीके से करते हैं तो वो मॉरली करेक्ट है। बट अगर आप उसको करप्ट तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है? आप रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके आप अपनी एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, और उसका जब आपकी एप्लीकेशन के लिए बाद में आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बनाया जाएगा, आप ड्राइविंग टेस्ट में जाके बैठेंगे, उसको बाकायदे अपनी काबिलियत के दम पे पास करेंगे, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से इसको स्किप कर देते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे ये सब बवाल नहीं करने, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा? ठीक है, कि उस केस में फिर आपके सामने ये आएगा कि यार अब मुझे तो ये बवाल करने नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं रोड ट्रांसफर ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलूंगा, मुझे बहुत सारे वहाँ पे एजेंट्स बैठे नजर आएंगे बाहर, अपनी छोटी छोटी सी हट लगा के वो बैठे होते हैं वहाँ पे। तो आप बाहर बैठे हुए उन एजेंट्स को कुछ पैसा देंगे और कहेंगे यार मेरा जल्दी से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी से वो बनवा देंगे। तो बेसिकली ये क्या है कि आपने मॉरली करेक्ट काम नहीं किया। मॉरली करेक्ट था, जो लीगली करेक्ट था, आपने वो नहीं किया, आपने कुछ अलग तरीके से करप्ट फॉर्म को यूज करके अपना काम करवा लिया। तो ये भी क्या है? एक तरीके का एबरेशन है। तो एबरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है, ABERRATION।
अब उसके बाद आते हैं अगला वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एबेटर, ABETTOR, ABETTOR। एबेटर क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन का मतलब क्या है? इस नाउन का मतलब है कि इंग्लिश में बता देता हूं पहले, वन हु इनकरेजेस और असिस्ट्स इन डूइंग बैड थिंग्स। एक ऐसा इंसान जो आपको इनकरेज करता है या आपकी मदद करता है गलत चीजों को करने में, ठीक है। यानी वो आपको उकसा कर कुछ गलत काम करने को कहता है, तो वो बेसिकली एक एबेटर होगा, ठीक है। तो एबेटर का ये मतलब हो गया ABETTOR। इसकी एक और स्पेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एबेटर, ABETTER। तो अगर आपके सामने लिखा होता है ABETTER या फिर आपके सामने लिखा होता है ABETTOR, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एबेयंस, ABEYANCE, ठीक है। तो ये जो एबेयंस है, ABEYANCE, ये एक नाउन है। और अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। एबेयंस का मतलब है अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन और टेम्पररी इनएक्टिविटी, ठीक है। कहने का मतलब है टेम्पररी इनएक्टिविटी, सेसेशन और सस्पेंशन, ठीक है। अगर लॉ के लैंग्वेज में इसको बात करें तो इसको कहा जाएगा स्टेट और कंडीशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी इन विच टाइटल इज नॉट एज येट वेस्टेड इन अ नोन टाइटल होल्डर। यानी कि अब अगर इसको ढंग से समझना है तो मान लीजिए कि मैं आपको ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने शुरुआत में 1 महीने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी और एकदम से 1 महीने वीडियोस प्रोवाइड मैंने करने के बाद मैं 2 महीने के लिए गायब हो गया। अब मेरा कोई रीज़न है, मेरा कोई पर्सनल रीज़न है, मुझे कुछ काम आ गया, कुछ चीज़ ऐसी करनी पड़ गई जो मेरे लिए अनअवॉइडेबल थी और मैं आपको उस टाइम पे वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाया। लेकिन मैं 2 महीने बाद लौट के आपको फिर से वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू किया। तो ये जो 2 महीने का पीरियड था बीच में जिसमें मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाया था, ये बेसिकली क्या था? ये मैं एबेयंस में था, ABEYANCE में था। यानी कि इस टाइम पे मैं टेम्पररी इनएक्टिविटी में था, एक स्टेट ऑफ सस्पेंशन में था कि उस टाइम पे मैं आपको चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो बेसिकली इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे एबेयंस, ABEYANCE, ठीक है। अच्छा, लॉ के लैंग्वेज में देखा जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? लॉ के लैंग्वेज में एबेयंस का एक लॉ के लैंग्वेज में भी यूज होता है जिसको बोलते हैं एन इनडिटर्मिनेट स्टेट ऑफ ओनरशिप एज एंड व्हेन पर्सन एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट हैज नॉट बीन एसर्टेन्ड। मान लीजिए कि कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई एक बड़ा सा मैंशन है, मान लीजिए कोई बड़ा सा बंगला है, मैंशन है, कोई बहुत बड़ा सा घर है और अभी उस घर के ऊपर 3 या 4 लोग उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक फादर था, ठीक है, उस फादर के 2 बच्चे थे। अब उस फादर की डेथ हो गई तो उस फादर ने अपनी प्रॉपर्टी में, ठीक है, अपने विल में क्लियरली लिखा नहीं कि यार ये घर किसका है, ठीक है। तो अब उस फादर की उस प्रॉपर्टी के लिए वो दोनों बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो वो कोर्ट में केस फाइल करेंगे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाएंगे। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। लेकिन अभी भी जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक ये क्लियर नहीं है कि उस प्रॉपर्टी पे किसका किसका रियल कंट्रोल है। तो इस समय आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी एबेयंस में है, यानी अभी ये क्लियर हो नहीं पाया है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये मतलब हो गया एबेयंस का। नॉर्मल मतलब भी बता दिया मैंने आपको और उसका लॉ के टर्म्स में जो लैंग्वेज मतलब है वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज एबहोर, ABHOR। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं एबहोर। ये एबहोर जो है ये एक वर्ब है, ठीक है। अब इस मीनिंग क्या है इस एबहोर वर्ब का? इसका मतलब है टू डिटेस्ट, टू लोथ, टू रिगार्ड विद एक्सट्रीम रेपुग्नेंस और एवर्जन, डिटेस्ट अटरली, लोथ, एबोमिनेट। ये सब क्या है यार? ये सब बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी से घृणा करना, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना। किसी को भी अगर आप देख लें तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा है और आपको बिल्कुल उससे नफरत हो रही है और आप उसे मार देना चाहते हैं या आप उसे मन ही मन गालियां दे रहे हैं, सामने गालियां दे रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि आप उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, आप उसे एबहोर करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, नफरत करते हैं उससे। तो ये मतलब होता है एबहोर का। अगर आप देखेंगे तो एबहोर के जो सिनोनिम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। हेट, इसका सिनोनिम है हेट सिंपली, कि किसी से नफरत करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि अगला देखते हैं कि
अगला मतलब क्या है? एबहोर का उल्टा आप समझ सकते हैं कि इसको आप कह सकते हो किसी को प्यार करना, किसी को एडमायर करना, तो वो क्या हो जाएगा? वो एबहोर का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। अब एबहोर से ही बना हुआ एक वर्ड है। एबहोर क्या है? एबहोर एक वर्ब है, यानी किसी से नफरत करना। उसी से बना हुआ एक वर्ड है एबहोरेंट। ठीक है, यानी इसकी स्पेलिंग है ABHORRENT। ठीक है, ABHORRENT। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंस्पायरिंग डिस्गस्ट और रेप्यूगनेंट और हेटफुल और डिटेस्टेबल, और यू कैन से कॉजिंग रेप्यूगनेंस, लोथसम, अटरली अपोज्ड और कॉन्ट्रेरी और इन कॉन्फ्लिक्ट, और एक्सट्रीम फीलिंग एक्सट्रीम रेप्यूगनेंस और एवर्जन। तो यार आप समझ पा रहे हैं कि इससे पहले जो मैंने आपको एबहोर बोला था, वो एबहोर क्या था? वो था वर्ब। अभी जो मैं आपको एबहोरेंट बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब मैंने आपसे एबहोर कहा, ABHOR बोला, यानी मैंने ये बताया कि जब ये किस मतलब में कहा मैंने आपसे, ये इस मतलब में मैंने कहा आपसे कि आप अगर किसी से नफरत कर रहे हैं तो वो क्या है? वो एबहोर है, आप उससे नफरत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी की क्वालिटी समझानी है, यानी कि ये कहा जाए कि यार वो बंदा बहुत खराब है, वो बंदा बहुत गंदा है, बहुत ही घृणा कर लेने वाला गंदा है, उसकी क्वालिटी के बताने के टर्म्स में अगर आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे एबहोरेंट, यानी ABHORRENT। यानी अगर आप किसी को एबहोरेंट बोल रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि उसके अंदर ये डिटेस्टेबल, लोथसम, रेप्यूगनेंट होना, अटरली अपोज्ड होना, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो एबहोरेंट का मतलब ये हो जाएगा। तो बेसिकली एबहोर और एबहोरेंट में कोई खास फर्क नहीं है। एबहोर मतलब इसको आप वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और एबहोरेंट मतलब आप इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला है एब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इज एब्जेक्ट। अब एब्जेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मीन, ग्रोवलिंग, कास्ट अवे। अभी समझाता हूं क्या मतलब है इनका। इसको आप कह सकते हैं अटरली होपलेस, या मिजरेबल, या ह्यूमिलिएटिंग और रेच्ड। फिर आप कह सकते हो कंटेम्प्टेबल, डेस्पिकेबल, बेस स्पिरिटेड, या फिर शेमलेसली सर्वाइल, स्लैविश। ठीक है, तो अब आप देखो अगर इनको, इसका सिनोनिम बता देता हूं मैं आपको। सिनोनिम है इसका डिबेसिंग, डिग्रेडिंग, मिजरेबल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बेस, मीन, लो, वाइल। अब मैं आपको समझाता हूँ इन सब मतलबों को, आपको इकट्ठे सबका मतलब समझ में आ जाएगा यार। कि जैसे कि आपसे मैं बोलूँ एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, मतलब इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है कि आदमी का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई इंसान अटरली होपलेस है, मतलब उसके पास कोई अर्निंग का साधन ही नहीं है। जब मैं एब्जेक्ट पॉवर्टी की बात करता हूँ, मतलब बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन है उसकी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ह्यूमिलिएटिंग है, बिल्कुल दयावान उसकी स्थिति हो रखी है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ही दया का पात्र है, खाने तक का पैसा नहीं है उसके पास। ठीक है, और एक होता है एब्जेक्ट कोवर्ड, यानी कि एक पर्सन, एक मतलब मैंने फ्रेज बोला है एन एब्जेक्ट कोवर्ड। कोवर्ड मतलब डरने वाला पर्सन, जो जल्दी डर जाए, जो किसी से घबरा जाए, किसी कंडीशन को अच्छे से फेस ना कर पाए। तो एक एब्जेक्ट कोवर्ड को आप क्या बोलेंगे? एक ऐसा पर्सन जो किसी सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डेस्पिकेबल बोलेंगे। डेस्पिकेबल मतलब एक ऐसा इंसान जो इतना डरता है कि वो हर कंडीशन से भागने लगे, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर सिचुएशन को झेलने की हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाएगा? ऐसे इंसान को कहा जाएगा डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टेबल, यानी उसकी बुराई की जा सकती, बेस स्पिरिट, यानी उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है। उसको शेमलेस बोला जाएगा, ऑब्सोलीट बोला जाएगा, गया गुजरा बोला जाएगा। ठीक है, तो एब्जेक्ट का ये मतलब भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके का एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी बिल्कुल गिरा हुआ पॉवर्टी, किसी लायक नहीं उठने का, और एब्जेक्ट कोवर्ड यानी उसने अपने आप को बिल्कुल एकदम डरा हुआ समझ लिया है, यानी वो उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं बची कि वो कुछ कर पाए, इसलिए एक तरीके से लोग उससे घृणा करने लगेंगे। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? एब्जेक्ट पॉवर्टी। इनके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डीबेसिंग, डिग्रेडिंग, मिजरेबल। अब आप समझ सकते हैं इन चीज़ों का मतलब जिससे मैंने समझाया है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एब्ज्योर। ठीक है, एब्ज्योर। अब ये जो वर्ड है एब्ज्योर, ये बेसिकली एक वर्ब है। ठीक है, और इस वर्ब का मतलब है सोलेमनली रिनाउंस अ बिलीफ, कॉज और क्लेम। यू कैन ऑल्सो से टू रिनाउंस और ऑन ओथ और सोलेमनली। अब
इसका हिंदी में मतलब बताने से पहले मैं आपके सामने इसका एक सेंटेंस में एक यूजेज आपको सुनाना चाहूँगा। यूजेज है एमपीज वर अर्ज्ड टू एब्ज्योर देयर जैकोबाइट एलेजियंस। ठीक, तो अब सोलेमली रेनाउंस का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये पता करें कि ये जो सोलेमली लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ये जो सोलेमली है इसका मतलब होता है, इंग्लिश में आपसे बोल रहा हूं, solemnly is defined as something done in a serious manner or in a way that reflects a ritual or tradition. An example of something that would be described as acting solemnly is how we all should behave at a funeral. तो solemnly का मतलब होता है कि seriously. तो जब एब्जोर की बात होती है इसका मतलब है कि सीरियसली किसी एक बिलीफ को या किसी एक कॉज को छोड़ देना। रिनाउंस कर देना मतलब छोड़ देना, यानी कि आप किसी एक बिलीफ को छोड़ रहे हैं, या फिर आपका कोई क्लेम है उसको छोड़ दे रहे हैं, या फिर आप किसी एक कॉज के लिए जिसके लिए लड़ रहे थे उसको सीरियसली छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है एब्ज्योर। इसको वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसके सिनोनिम्स हैं रेनाउंस, दूसरा है रिलिंक्विश, फिर रिजेक्ट, आप डिस्पेंस विद भी कह सकते हैं, फिर फोरगो, फिर फोर्सवियर, फिर डिसएवो DISAVOW, फिर अबेंडन भी कह सकते हैं, फिर डिनाई, फिर डिस्क्लेम, फिर गिव अप, या फिर रेप्यूडिएट, या फिर स्पर्न, या फिर एबनेगेट। फिर अगला आप बोल सकते हैं वॉश वंस हैंड ऑफ, ठीक है, ये एक तरीके का फ्रेज है। फिर अगला हो सकता है ड्रॉप, फिर अगला हो सकता है डू अवे विथ। तो ये सारे क्या हो गए, ये इसके हो गए आपके सिनोनिम्स। इसका एक और वर्ड में सेंटेंस में आपको इसका एक यूजेज बता दे रहा हूँ, आई हैव एब्ज्योर्ड ऑल स्टिमुलेंट्स। तो ये होता है एब्ज्योर का मीनिंग, किसी को अपनी मर्जी से सीरियसली छोड़ देना। अगला होता है एब्ल्यूशन, ABLUTION। अब अगर आप इससे पता सोचने की कोशिश करें तो ये बेसिकली एब्ल्यूशन क्या है। एब्ल्यूशन एक नाउन है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? एब्ल्यूशन का मतलब है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, या फिर आप कह सकते हैं द एक्ट ऑफ वॉशिंग द बॉडी, और ये फिर आप कह सकते हैं सेरिमोनियल वॉशिंग, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस में मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस है द वुमेन परफॉर्म्ड देयर एब्ल्यूशंस, ठीक है। सिनोनिम बताता हूं आपको इसके। सिनोनिम है इसका वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, शावरिंग, स्क्रबिंग, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। फिर आप इसको बाथ कह सकते हैं, शॉवर कह सकते हैं, टॉयलेट कह सकते हैं, सोक, डिप, डाउच। तो ये अलग अलग, ठीक है, आपका मतलब है इसके। ब्रिटिश में इसका एक और मीनिंग होता है, अ बिल्डिंग और रूम कंटेनिंग वॉशिंग फैसिलिटीज एंड टॉयलेट्स, ठीक है यार। अब इसका एक बहुत वाइड मीनिंग, आप इसको बहुत वाइड तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मल नहाना है, ठीक है, तो आप अपने नहा के अपने जो शरीर में जो हम लोग दिन भर काम करते हैं उसके से जो गंदगी लग जाती है उसको धोने को भी एक तरीके से एब्ल्यूशन कहा जा सकता है। क्योंकि अगर एब्ल्यूशंस जो कि बेसिकली जिसका मतलब होता है द बिल्डिंग ऑफ रूम कंटेनिंग वॉशिंग फैसिलिटीज एंड टॉयलेट्स, तो आप इसको नॉर्मल नहाने को भी इसके मतलब से रिलेट कर सकते हैं। और ये कहा जाए कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा सिनिस्टर है, कोई एक बहुत बड़ा ऐसा इंसान है जिसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हो, बहुत सारी गलती कर रखी हो, तो वो अगर अपने आप को प्रायश्चित करे और प्रायश्चित करके अपने आप को इन सारे क्राइमों से, जो वो सारे क्राइम जो उसने करे हैं इससे अगर अपने आप को अलग हटाना चाहे, उन सारे क्राइम्स को धोना चाहे, तो उसको भी एक तरीके से आप एब्ल्यूशन कह सकते हैं। यानी कि अपने बॉडी की जो रियल में गंदगी लगी है जिसको आप नहाने से या हाथ धुलने से हटाते हैं उसको भी एब्ल्यूशन कहा जा सकता है। और इस वाइडर टर्म्स में फिलोसॉफिकली अगर आप अपने आप के अंदर से किसी गलत चीज़ को हटाना चाहते हैं, या फिर कोई एक सिनिस्टर, कोई एक पर्सन जिसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं, वो अगर पश्चाताप करके अपने सारे क्राइम्स को अपने आप से हटाना चाहता है तो उसको भी आप एब्ल्यूशन कहा जा सकता है, यानी द एक्ट ऑफ वॉशिंग समथिंग। अब वो वॉशिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गंदगी वॉश करना भी हो सकता है, अपनी किसी फिलोसॉफिकल थॉट या फिर अपने किसी फिलोसॉफिकल माइंडसेट को हटाना भी एक तरीके का एब्ल्यूशन हो सकता है, पश्चाताप करके अपनी गलतियों को अपने आप से अलग करना, ये भी एक तरीके का एब्ल्यूशन हो सकता है। तो एब्ल्यूशन के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। अब अगला आता है, अगला वर्ड है एब्नेगेशन, ठीक है। इसका मैं स्पेलिंग कर देता हूं, ABNEGATION, एब्नेगेशन, ABNEGATION। अब ये एब्नेगेशन की मीनिंग क्या है? बेसिकली पहले तो पता करते हैं एब्नेगेशन है क्या। ये एक नाउन है, ठीक है। मीनिंग आप कह सकते हो द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, ठीक है। तो एक अलग वर्ड में कहा जा सकता है फोरबियरेंस, रिनंसिएशन,
इसको और भी एक चीज कह सकते हैं, सेल्फ डेनियल। ठीक है, अब ये जो दो मतलब है, एक तो मैंने आपको बताया था एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, और जो दूसरा मतलब है सेल्फ डेनियल, इनको हम प्रॉपरली समझते हैं इसको, इस वर्ड को किसी एक सेंटेंस में यूज करके। तो पहला सेंटेंस मैं आपके सामने पढ़ता हूं, एब्नेगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ही हैज अ पॉलिटिशियन यूजेस द ट्रिक ऑफ एब्नेगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी मान लीजिए कि किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर कोई इल्जाम लगा, ठीक है, अब उस एग्जाम से अपने आप को हटाने के लिए उसके ऊपर कोर्स चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उसको डर है कि सुप्रीम कोर्ट उसको इंडिक्ट कर देगा, क्राइम में फंसा देगा, और हमारे देश के लॉ के हिसाब से उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, खुद ही उस पॉलिटिकल पावर को छोड़ देगा, एब्नेगेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एब्नेगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी अपनी पोजीशन को, ठीक है, या फिर किसी भी और चीज को अपनी मर्जी से छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना उसे। इसको सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रेनंसिएशन, रिजेक्शन, रिफ्यूजल, अबेंडमेंट, एब्डिकेशन, एब्डिकेट हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सरेंडर, गिविंग अप, रेलिंक्विशमेंट, एब्जुरेशन, रेप्यूडिएशन, डेनियल, एसक्यूएल, डिसएवोएल, कास्टिंग असाइड। ठीक है, इसका एक और यूजेज पढ़ दे रहा हूं मैं, टू इग्नोर दीज इश्यूज वुड बी अ सीरियस एब्नेगेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यानी कि अगर आप इन सारे इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं तो ये एक तरीके से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सीरियसली इग्नोर कर देने के बराबर है, यानी कि आप उनको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं ठहरा रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देने के बराबर है। तो ये बेसिकली एब्नेगेशन का मतलब है। अच्छा, जो दूसरा मतलब है उसका होता है सेल्फ डेनियल। सेल्फ डेनियल, इसका यूजेज देखते हैं, पीपल आर कैपेबल ऑफ एब्नेगेशन एंड अनसेल्फिशनेस। ठीक है, यानी कि इसने कहा है कि पीपल है वो एब्नेगेशन और अनसेल्फिशनेस दिखाने के काबिल हैं। इसका क्या सिनोनिम्स हुए इस केस में, सेल्फ डेनियल हो गया, सेल्फ सेक्रीफाइस हो गया, एब्सटिनेंस हो गया, टेम्परेंस हो गया, कॉन्टिनेंस हो गया, एसेटिसिज्म हो गया, एब्स्टेमियसनेस हो गया, ऑस्टेरिटी, रिनंसिएशन, रेजिग्नेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आप हैं, आप भूखे हैं, आपके पास खाना है, लेकिन आपके पास सिर्फ अपने भर के खाने लायक ही खाना है, और आपने सड़क पे किसी छोटे गरीब बच्चे को बैठे देखा जो भी भूखा है, तो अब आपको लगा कि यार मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इस खाने की उस छोटे बच्चे को, तो आपने अपना खाना खुद ना खा के उस छोटे बच्चे को दे दिया। तो आपने क्या दिखाया, ये आपने एक तरीके का सेल्फ डेनियल प्रैक्टिस किया, यानी आपने अपना मतलब नहीं देखा, उस छोटे बच्चे को जिसे भूख लगी थी उसे खाना खिलाया, जबकि भूख आपको भी लग रही थी लेकिन आपने खुद नहीं खाया, उसे खिलाया। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का एब्नेगेशन है। तो इस तरीके से हम एब्नेगेशन की मीनिंग को याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला है एबॉलिश। ठीक है, एबॉलिश एक वर्ब है और एबॉलिश बहुत आसान है, पुट एन एंड टू पुट एन एंड टू, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, ये एबॉलिश का मतलब है। ठीक है, तो एबॉलिश में मैं ज़्यादा डीप नहीं घुसूंगा, आप सबको पता है। फिर अगला वर्ड देखते हैं, एबॉलिशनिस्ट, ABOLITIONIST। अब ये एबॉलिशनिस्ट क्या है, एबॉलिशनिस्ट बेसिकली एक नाउन है। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली जो एबॉलिशनिस्ट जो वर्ड निकल रहा है, ये बेसिकली जो मतलब आप कह सकते हो कि ये काफ़ी कुछ एबॉलिश वर्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत फ़र्क है इसमें और जो ओरिजिनल वर्ड है एबॉलिश में बहुत फ़र्क है। एक तो एबॉलिशनिस्ट जो वर्ड है ये एक नाउन है, ठीक है, और एक कंसेप्ट आया था जिसका मतलब था एबॉलिशनिज्म, ABOLITIONISM। बेसिकली ये था क्या, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एबॉलिशनिज्म इज अ मूवमेंट टू एंड स्लेवरी वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। In Western Europe and the Americas, abolitionism was a historical movement to end the African and Indian slave trade and set slaves free. यानी ये abolitionism एक मूवमेंट चला था, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में, जिसमें स्लेवरी पे रोक लगाने की बात कही गई थी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देने की बात कही गई थी, चाहे वो स्लेवरी फॉर्मल टाइप की हो या इनफॉर्मल टाइप की हो। तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जिससे अफ्रीकन स्लेव्स और जो इंडियन स्लेव्स थे, जो एक दूसरे से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचे जाते थे कॉलोनियल और इंपीरियल टाइम्स में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो बेसिकली वहाँ से इस एबॉलिशनिज्म का जो कंसेप्ट था वो शुरू हुआ था। और एबॉलिशनिस्ट जो वर्ड है ये काफ़ी कुछ हद तक इसी से निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अ पर्सन हु एडवोकेटेड और सपोर्टेड द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी हर वो इंसान जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या वेस्टर्न यूरोप में ये जो स्लेवरी चलती थी इसको एबॉलिश करने के फेवर में बात की थी, उसको एबॉलिशनिस्ट बोलते हैं। इसीलिए बेसिकली ये एक नाउन है, यानी हर वो पर्सन जिसने इस चीज़ को हटाने की बात की थी स्लेवरी को, उसको हम एबॉलिशनिस्ट बोलते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं, अ पर्सन हु फेवर्स द एबॉलिशन ऑफ एनी लॉ और प्रैक्टिस डीम्ड टू हार्मफुल टू द सोसाइटी। अच्छा, अभी तक तो मैं आपको स्लेवरी के कंटेक्स्ट में बताया था, अब इसका एक बहुत वाइड कॉनोटेशन हो गया। वाइड कॉनोटेशन मतलब कि अगर कोई भी गलत चीज़ प्रेवलेंट है सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो वो भी एक एबॉलिशनिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने अपने इस एबॉलिशनिस्ट एटीट्यूड और कैरेक्टर की वजह से सती को इंडिया से हटाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ही वॉज ऑल्सो एन एबॉलिशनिस्ट। मतलब ये वो पर्सन्स होते हैं जो कोई हार्मफुल, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो ओवरऑल सोसाइटी के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको हटाने की जब बात करते हैं तो इस तरीके के लोगों को एबॉलिशनिस्ट बोलते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम को हटाना, तो जो इसको फेवर करते हैं वो एबॉलिशनिस्ट हैं, ठीक है। रिलीजियस शॉविनिज्म को हटाना, ठीक है, मेल शॉविनिज्म को हटाना, फीमेल शॉविनिज्म को हटाना, ये सब जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इनको बेसिकली आप एबॉलिशनिस्ट टेंडेंसीज कहते हैं, ठीक है। अब अगले वर्ड पे हम आते हैं। अगला वर्ड है एबॉमिनेबल, ठीक है। एबॉमिनेबल, इसका मैं वो पढ़ दे रहा हूँ, स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूँ, ABOMINABLE, ABOMINABLE। अब इस एबॉमिनेबल का मतलब क्या है, ठीक है। एबॉमिनेबल का जो मतलब होता है यार, वो है वेरी बैड और अनप्लीजेंट, या फिर डिटेस्टेबल, या फिर लोथसम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रिपुग्नेंटली हेटफुल, डिटेस्टेबल, लोथसम। इस तरीके के बहुत वर्ड्स हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। कोई चीज़ जो आपको पसंद ना है, जिससे आपको घृणा हो, उसको हम एबॉमिनेबल बोलते हैं। पहले हम लोग देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक साथ वर्ड डिस्कस किया था जिसका मतलब था एबोरेंट, ABHORRENT। ये वर्ड मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था। इस एबोरेंट का सिनोनिम था एबॉमिनेबल। तो जो एबोरेंट का मतलब था बेसिकली वही एबॉमिनेबल है। और कुछ सिनोनिम्स है, हॉरिबल, रिवॉल्टिंग, फाउल, मिजरेबल, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। अगर आप एबॉमिनेबल के एंटोनिम्स देखेंगे तो वो है लाइकेबल, एडमिरेबल, डिलाइटफुल, ये उसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला वर्ड आज हम सीखेंगे वो है एबॉमिनेट, ABOMINATE। नेक्स्ट वर्ड इज एबॉमिनेट। अब इस वर्ड एबॉमिनेट का क्या मतलब है? एबॉमिनेट मतलब टू अबोर या टू डिटेस्ट, यानी बेसिकली ये जो एबॉमिनेट है ये एक वर्ब है। एबॉमिनेबल जो मैंने बताया था वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है, और ये जो एबॉमिनेट मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग चीज़ है, ठीक है। एबॉमिनेट मैं आपको किस फॉर्म में बता रहा हूँ? एबॉमिनेट आपको बताया जा रहा है वर्ब के फॉर्म में, और जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एबॉमिनेबल, वो क्या था? वो एक एडजेक्टिव था। यानी एबॉमिनेबल जब मैं बोलता हूं तो मैं बता रहा हूं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं किसी एक इंसान की, यानी कि वो डिटेस्टफुल है, लोथसम है, हेटफुल है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम उसको एबॉमिनेबल बोल रहे हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं एबॉमिनेट की, तब हम बात कर रहे हैं वर्ब की। यानी इसका क्या मतलब होगा? टू रिगार्ड विद इंटेंस एवर्जन और लोदिंग, अभोर, और टू डिसलाइक स्ट्रांगली। यानी अगर आप किसी को से बहुत बुरी तरीके से घृणा करते हैं तो ये आप कर रहे हैं, यानी ये कार्य है। यानी आप एबॉमिनेट को एक वर्ब के टर्म में यूज करेंगे। और जब एबॉमिनेबल की बात की थी तब एबॉमिनेबल का मतलब तो यही था, लेकिन बेसिकली उसको आप किस फॉर्म में बात कर रहे थे? एडजेक्टिव के फॉर्म में। यानी एबॉमिनेबल यूज करके आप किसी और पर्सन की क्वालिटी को बता रहे थे। ये फर्क है, ठीक है। अब उसके आगे आते हैं। अब मतलब यही फर्क था एबॉमिनेबल और एबॉमिनेट में। क्या फर्क है? एबॉमिनेबल एडजेक्टिव है, एबॉमिनेट क्या है? वर्ब है। अब अगला वर्ड आते हैं एबोरोजिन, ठीक है। एबोरोजिन, ABORIGINE, ABORIGINE। तो बेसिकली जो एबोरोजिन क्या है? ये बेसिकली एक नाउन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? द ओरिजिनल और नेटिव इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब है द ओरिजिनल और नेटिव इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, या फिर आप कह सकते हो वन ऑफ द ओरिजिनल और अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, ठीक है। तो और इसमें एक और वर्ड निकलता है एबोरोजिन्स, ABORIGINES। इसमें आप कह सकते हो द ओरिजिनल नेटिव फौना और फ्लोरा ऑफ अ रीजन। तो यार यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एबोरिजिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली जो शुरुआती, जो सबसे, जब कम्युनिटी का शुरुआत हुई किसी एक कंट्री में या किसी एक जगह पे, ठीक है, तो उसकी शुरुआत में
जो सबसे पहले इनहेबिटेंट्स थे, जो सबसे पहले लोग थे जो वहां पे रहे थे, उनको क्या बोला जाएगा? उनको एबोरिजिन कहा जाएगा। ये मतलब होता है एबोरिजिन का। आगे आते हैं एबॉर्टिव, ABORTY, अब यार ये चीज तो आपको अब बहुत आसान लगनी चाहिए इस वर्ड को, एबॉर्टिव। अब ये जो वर्ड है आपका एबॉर्टिव, ABORTIVE, इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको आप एडजेक्टिव के टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं और इसको आप एडवर्ब के टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। पहले तो इसका मतलब देखते हैं क्या होता है एबॉर्टिव का। एबॉर्टिव बेसिकली इसका मतलब है फ्यूटाइल, अनसक्सेसफुल, वेन, ठीक है, यानी मतलब अनसक्सेसफुल है, फेलिंग टू सक्सीड है, या इम्परफेक्टली डेवलप्ड है, रूडिमेंट्री है, या फिर एबॉर्टिव को आप कह सकते हो बॉर्न प्रीमेच्योरली। अब इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता है यार, ठीक है। इसको मेडिसिनल लैंग्वेजेस में भी यूज किया जाता है, इसको पैथोलॉजी में भी यूज किया जाता है, इसको बॉटनी में भी यूज किया जाता है। अगर आप एक नॉर्मल मतलब समझे अबॉर्टिव का, तो उसका नॉर्मल मतलब ये हो जाएगा कि यार फेलिंग टू सक्सीड, अगर कोई फेल हो गया है, उस सक्सेस नहीं मिली, अनसक्सेसफुल है, तो उसका मतलब क्या है? अबॉर्टिव है। अब मान लीजिए मेडिकल टर्म्स में आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए कोई एक डिजीज है, ठीक है, तो किसी के डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या कहा जाएगा? उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो अगर उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश को क्या कहा जाएगा? अबॉर्टिव कहा जाएगा, यानी एक्टिंग टू हॉल्ट प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज, दिस इज व्हाट, दिस इज अबॉर्टिव, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक बेबी पैदा होने वाला है किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, तो उसका अबॉर्शन कर दिया जाए, यानी उसको बेबी को आने से रोक दिया गया, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया? प्रोड्यूसिंग और इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अबॉर्शन, तो ये भी क्या हो गया? अबॉर्टिव हो गया। उसी तरीके से बॉटनी की लैंग्वेज में, यानी कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर वो प्लांट्स जो सीड्स हम सो करते हैं सॉइल में, अगर वो जर्मिनेट ना हो, अगर वो अनएबल टू जर्मिनेट हो, तो वो क्या होगा? वो भी एक तरीके का अबॉर्टिव हो गया कि वो जर्मिनेट ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो ये मतलब हो गया अबॉर्टिव का। इसके सिनोनिम्स अगर आप सुनेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। इसके सिनोनिम्स हैं अबॉर्टिव के, फ्रूटलेस, इनफेक्चुअल, बूटलेस, अनअवेलिंग, वेन। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे अबॉर्टिव के? सक्सेसफुल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अबॉर्टिव देख लिया हमने। अब आगे आते हैं, अगला है एब्रेड, ABRADE, एब्रेड। अब बेसिकली ये एब्रेड क्या है? पहली बात तो एब्रेड का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, एब्रेड इज अ वर्ब, ठीक है, एब्रेड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू वियर डाउन और ऑफ, ठीक है, टू वियर डाउन और ऑफ। समझ में नहीं आया आपके, ठीक है, आप कह सकते हो टू स्क्रेप ऑफ, ठीक है, टू स्क्रेप ऑफ बाय स्क्रैपिंग और रबिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में टाइल्स लगी होती हैं, ठीक है, और आप कई दिनों के लिए घर छोड़ के चले गए हैं, आपका घर बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ, आप लौट के आएंगे तो आप देखेंगे कि इन टाइल्स के ऊपर धूल जमा होती है, ठीक है। तो अब आपको उस धूल को जमा करने के लिए आप किसी कपड़े से लेके कपड़े से उस टाइल को तेजी से रगड़ेंगे ताकि उसके ऊपर जो धूल जमा हो गई वो हट जाए। तो बेसिकली एब्रेड यही होता है, किसी चीज पे कोई चीज रब करके, स्क्रैप करके उसके ऊपर जमा हुई चीज को हटा देना, वियर ऑफ कर देना। या फिर अगर उसके ऊपर जमा नहीं भी है किसी भी चीज को, जैसे स्टोन है, ठीक है, अब स्टोन फाइलिंग होती है, स्टोन के ऊपर अगर आप बार बार नाइफ से नाइफ को रगड़ते तो नाइफ पैना होता है, यानी नाइफ के ऊपर की जो मोटी परत है वो हटने लगती है और स्टोन के ऊपर की हल्की हल्की परत भी हटती है। तो ये क्या कर रहे हो आप? एब्रेड कर रहे हो नाइफ को या स्टोन को एब्रेड कर रहे हो। तो बेसिकली ये मतलब होता है एब्रेड का, ठीक है। अगला मत होता है एब्रिज, ठीक है। अब जो ये एब्रिज है, एब्रिज आपको कई जगह दिखेगा। इसका जो यूजेज है वो दो तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग को समझना है, ठीक है, और जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी दोनों में अलग होगा। अगर आप बोलते हो एवरेज यानी ABRIDGE, तो ये क्या है? ये वर्ब है। और अगर आप बोलते हो एब्रिजमेंट यानी ABRIDGEMENT, तो उसका क्या मतलब हो गया? वो हो गया नाउन। तो एवरेज बोलते हो तो वो वर्ब है, एब्रिजमेंट बोलते हो तो वो नाउन है। एवरेज क्या हो जाएगा? मतलब देखते हैं इसका। ये क्या है? बेसिकली एक वर्ब है। इसका मतलब टू शॉर्टन बाय ओमिशंस व्हाइल रिटेनिंग द बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। टू, या फिर आप कह सकते हो टू रिड्यूस और लेसन इन ड्यूरेशन, स्कोप, अथॉरिटी एटसेट्रा, यानी डिमिनिश कर देना, कर्टेल कर देना, टू डिप्राइव, कट ऑफ कर देना। यानी कि यार अब आप इसको ध्यान से देखो तो
थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एब्रीविएट की बात की थी। एब्रीविएट में क्या कहा था मैंने आपको, किसी चीज़ को कम बोल देना। ये भी कुछ कुछ उस जैसा ही है। कट डाउन कर देना, एपिटोमाइज कर देना, कंडेंस कर देना, एब्स्ट्रैक्ट कर देना, डाइजेस्ट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, डाइवेस्ट कर देना। डाइवेस्ट मतलब अलग कर देना, कुछ चीज़ें मेन पार्ट से अलग कर देना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेंथन करना, एक्सपेंड करना। तो एवरेज मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। कैसे कर देना कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सी किताब है, आपको कोई एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया, आपसे कहा जाए कि आप उसकी समरी लिखिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को हटा देंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो लिख देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ओमिट कर रहे हैं ताकि आप बेसिक कंटेंट्स को वहाँ पर रख सकें। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एवरेज करना हो जाएगा, यानी उसको शॉर्टन करना हो जाएगा। तो आप कह सकते हो टू एवरेज अ रेफरेंस बुक, ये एक तरीका की यूजेज हो गया एवरेज का, छोटा करना। या फिर टू एवरेज अ विजिट, यानी मान लीजिए कि आपकी विजिट लंदन आपको जाना है और आपने 20 दिन का प्लान बनाया और आपने क्या किया कि बाद में कहा कि यार 20 दिन तो नहीं, मैं अपने काम को 10 दिन में करके लौट आऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने ओरिजिनल जर्नी में से 20 दिन की चीज हो उसमें से 10 दिन काट दिए, 10 ही दिन छोड़े। तो क्या हुआ, आपने एवरेज कर दिया, उसको डिमिनिश कर दिया, कर्टेल कर दिया, छोटा कर दिया। और ये केवल टाइम में नहीं होता, ये स्कोप में भी होता है, अथॉरिटी में भी होता है। यानी कि मान लीजिए पहले पुराने टाइम में 1960 के दशक में, 1970 के दशक में जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो होती ही थी, ठीक है, रेवेन्यू पावर्स होती थी, उसके पास जुडिशियल पावर्स भी होती थी, ठीक है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी उसके पास, फाइनेंशियल पावर्स भी थी और जुडिशियल पावर्स भी थी। लेकिन बाद में एक इनैक्टमेंट, एक अमेंडमेंट लाके उसकी जुडिशियल पावर ले दी गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वेस्ट कर दी गई। तो क्या हुआ, उसकी अथॉरिटी को कम कर दिया गया, उसकी अथॉरिटी को एवरेज कर दिया गया। तो इससे आप एवरेज समझेंगे और इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, एवरेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्या है, एब्रोगेट, ABROGATE। एब्रोगेट क्या है, एब्रोगेट एक एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू रिसेंड, टू एनल। अब ये रिसेंड और एनल तो सिनोनिम सुनने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका थोड़ा अलग ही है, और जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। एब्रोगेट क्या होता है, एब्रोगेट होता है टू एबॉलिश बाय फॉर्मल और ऑफिशियल मीन्स, या फिर टू एनल बाय एन अथॉरिटेटिव एक्ट या रिपील, ठीक है। ये एब्रोगेट का मतलब होता है। यानी मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई एक लॉ बना के किसी एक एग्जिस्टिंग लॉ को हटा दिया। आपको पहले पता था कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ठीक है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से, ठीक है, उस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। यानी उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के आर्टिकल 301 में रख दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके आपने उस राइट टू प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट नहीं रखा, यानी फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटा दिया। यानी कि नाउ बाय इनैक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके उस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एब्रोगेट कर दिया, ठीक है। यानी अथॉरिटेटिव एक्ट से उसकी अथॉरिटी को फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब होता है एब्रोगेट का, ठीक है। अगर आप एब्रोगेट के सिनोनिम्स देखना चाहें तो एब्रोगेट का सिनोनिम हो जाएगा कैंसिल, रिवोक, रीसेंड, नलिफाई, वॉइड, इनवैलिडेट। बेसिकली ये हो जाएंगे सिनोनिम्स एब्रोगेट के। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बड़े आसान है, रेटिफाई, स्टैब्लिश, प्रिजर्व। ओके फ्रेंड्स, अब जो अगला वर्ड हम लोग पढ़ेंगे वो है एब्सेस। आई एम रियली सॉरी कि अगर मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको समझ में आता है, इसलिए मैं आपकी मीनिंग पढ़ देता हूँ। एब्सेस मतलब ABSCESS, ABSCESS। अब ये एब्सेस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पस इन अ कैविटी। अलग पढ़ता हूँ, अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफन अकम्पनीड बाय स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन एंड फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये बेसिकली आप कह सकते हो कलेक्शन, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफन अकम्पनीड बाय स्वेलिंग और एन इन्फ्लेमेशन। यार ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, आपको कभी कभी हाथ पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से, चोट लगने की वजह से वहाँ पे एक पस टाइप का आपका जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको काफ़ी दिन तक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है नॉर्मल लाने के लिए। तो ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक तरीके की प्रॉब्लम है जब हमारे टिश्यू फॉर्मेशन में एक लोकलाइज जगह पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इन्फ्लेमेशन होता है। नॉर्मली ये बैक्टीरिया से होता है। तो बेसिकली ये एब्सेस होता है,
ठीक है। अगला है एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड। अब ये एब्सकॉन्ड क्या है? ठीक है, अब यार एब्सकॉन्ड ज्यादा मतलब नहीं है, ABSCOND। एब्सकॉन्ड मतलब टू हाइड और टू गेट आउट ऑफ द वे। ठीक है, इसको क्या होता है कि भाग जाना, छुप जाना, डर जाना, ये भी बोलते हैं एब्सकॉन्ड। यानी कि अब अगर प्रॉपरली देखा जाए तो आप बोल सकते हो टू डिपार्ट इन अ सडन एंड सीक्रेट मैनर, या फिर आप कह सकते हो स्पेशली टू अवॉइड कैप्चर एंड लीगल प्रोसिक्यूशन। यानी टू डिपार्ट इन अ सडन एंड सीक्रेट मैनर, स्पेशली टू अवॉइड कैप्चर एंड लीगल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब इसका अगर सेंटेंस में यूजेज देखें तो क्या कह सकते हैं? द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द मनी। कैशियर मनी के साथ भाग गया, यानी उसने कुछ गलत किया होगा तभी भागा वो। ठीक है, इसका सिनोनिम आप क्या कह सकते हो? डी कैंप, बोल्ट। यानी मान लीजिए थीफ किसी घर में घुसे, उन्होंने चोरी की और वो डी कैंप कर गए, यानी चुपचाप चुरा के भाग गए, यानी किसी और को पता नहीं लग पाया। तो बेसिकली ये एब्सकॉन्ड होता है कि आप सडन और सीक्रेट मैनर में किसी को बिना पता चले हुए भाग गए वहां से, ताकि आपको कोई पकड़ ना सके या आपके ऊपर कोई लीगल प्रोसिक्यूशन ना कर सके। इसे एब्सकॉन्ड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एब्सकॉन्ड इज अ वर्ब। अगला है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व, ABSOLVE, ABSOLVE। एब्सॉल्व मतलब होता है यार, ये एक तो वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब है टू एक्विट विदाउट ब्लेम, टू डिस्चार्ज फ्रॉम। यानी आपको, आपके ऊपर बिना किसी इल्ज़ाम को लगाए हुए आपको छोड़ दिया गया, तो ये आपको एब्सॉल्व कर दिया गया, टू डिस्चार्ज कर दिया गया। मान लीजिए आपके ऊपर, मान लीजिए एक चोरी का चार्ज लगा था और कोर्ट में आपके ऊपर केस चल रहा था और केस में आपको ये पाया गया कि आपने वो चोरी नहीं की है, तो कोर्ट ने आपको एब्सॉल्व कर दिया आपके क्राइम से। यानी कोर्ट ने बोल दिया कि आपने क्राइम नहीं किया है, आपने चोरी नहीं किया, आप जा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज एब्सॉल्व, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उसको हटा दिया गया। अगला है एब्सटेन, ABSTAIN। अब ये एब्सटेन क्या होता है? ठीक है, एब्सटेन एक वर्ब है। ठीक है, बेसिकली ये एक तरीके का होता है कि किसी चीज को करने से अपने आप को रोकना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई शराब पीता है, ठीक है, तो अब शराब पी, उसको प्रॉब्लम हुई, उसका लीवर में थोड़े दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे कहेगा कि शराब पीना कम करिए। तो उसको लगेगा कि हाँ यार मेरी हेल्थ को खतरा हो रहा है, तो अब मुझे शराब पीना छोड़ना चाहिए। तो उसने खुद से, ठीक है, अपने खुद से अपने अंदर एक एम बनाया कि अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, और उसने शराब पीनी बंद किया। यानी उसने अपने आप को क्या किया? एब्सटेन किया। यानी एब्सटेन किया कि अब मैं शराब को नहीं पीऊंगा, अपने आप को रोकूंगा। तो ये एब्सटेन होता है। दैट इज टू होल्ड oneself back voluntarily, especially from something regarded as improper और अनहेल्दी। ठीक है, ये शराब के फॉर्म में भी हो सकता है, मीट के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग मीट, तो ये एक एब्सटेन का मतलब हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? एक और मतलब हो सकता है टू रिफ्रेन फ्रॉम कास्टिंग वंस वोट। ठीक है, यानी कि यार आप वोट करने गए और आपने अपना वोट ही नहीं डाला, ठीक है, तो एब्सटेन कर दिया, आपने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब आप कैसे कह सकते हो? अ रेफरेंडम इन विच 2 डेलीगेट्स एब्सटेन। ठीक है, एक तरीके का रेफरेंडम हुआ जिसमें 2 डेलीगेट्स ने अपना वोट ही नहीं डाला, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं डाला, यानी अपने आप को वॉलंटरली वोट डालने से रोक दिया, तो उसको क्या बोल दिया? एब्सटेन किया अपने आप को। नाउ एब्स्टेमियस, ABSTEMIOUS। अभी जो एब्स्टेमियस है, ABSTEMIOUS, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब है स्पेयरिंग और मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, टेम्परेट इन डाइट। ठीक है, यानी कि जो इनकी डाइट है, जो ये खाते पीते हैं या जिस तरीके की ये लाइफ जीते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, बहुत जगह लेविश नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट लेविश मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई खर्चे करना, बहुत ज़्यादा महंगी कारों में घूमना, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे खर्चे करना। ठीक है, खाना बहुत नॉर्मल खाना, जैसे कि अब एक पर्सन है वो बहुत महंगी कार में घूमता है, उसके पास बहुत सारे पैसे, और एक कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास पैसे तो बहुत हैं बट वो एक नॉर्मल कार में घूमता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता, बहुत ज़्यादा महंगी कार नहीं खींचता, नहीं खाता, नहीं मतलब उसमें नहीं घूमता। यानी बेसिकली एन एब्स्टेमियस लाइफ आप कह सकते हैं, जो एक सिंपल लाइफ जीता है। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे इज अ टाइप ऑफ पर्सन, वो एक इस तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत ज़्यादा लेविशनेस में बिलीव नहीं कर सकते, वो एक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। और जो हमारे पुराने टाइम में इंडिया की मीडियल हिस्ट्री में जो नवाब्स हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, ठीक
ठीक है। तो नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, ये जो इस तरीके के जो नवाब थे हमारे मिडिवल हिस्ट्री में, और जो हमारे हैदराबाद के और कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे, और इवन औरंगजेब, तो ये जो रूलर्स थे हमारे मिडिवल हिस्ट्री में, ये बहुत ज़्यादा एब्स्टिनेंट लाइफ जीते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये नवाब हैं तो ये बहुत ही लैविश लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। औरंगजेब के लिए तो ये कहा जाता था कि ही यूज्ड टू स्लीप ऑन अ फ्लोर, वो एक बेड पे भी नहीं सोते थे, वो फ्लोर पे सोते थे। तो इस हद तक यानी अपने आप को, ठीक है, फैसिलिटीज़ होने के बाद भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना, एक सिंपल लाइफ जीना, इसको एब्स्टेमियस कहते हैं। अब कुछ कुछ केसेस में कहा जाता है कि कोई इंसान जो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता, ठीक है, कुछ लोगों को क्या है कि भैया शराब पी रहे हैं तो पीते ही चले जा रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन एक इंसान है जो कंट्रोल में शराब पी रहा है या नहीं पी रहा है, रोक रहा है अपने आप को, जो एक कंट्रोल में खाना खा रहा है, जो कंट्रोल में शराब पी रहा है, तो वो बेसिकली आप कह सकते हो इस तरीके, यानी किसी भी चीज़ को कंट्रोल में करना, एक सिंपल लाइफ जीना, इसको एब्स्टेमियस कहते हैं, ABSTEMIOUS, ठीक है। अगर आप इसको सिनोनिम्स देखेंगे तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एसेटिक, एसेटिक मतलब जो एक साधु की जिंदगी जीता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। दूसरा आप कह सकते हो एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट अभी हमने देखा है। दूसरा आप कह सकते हो टेम्परेट, तीसरा आप कह सकते हो नॉन इंटेलिजेंट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब अगला आ गया एब्स्टिनेंस। अगला वर्ड है एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE। ये क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रेन, टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू रिस्ट्रेन फ्रॉम, ठीक है। इसका मतलब है टू रिस्ट्रेन फ्रॉम। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना, एब्स्टिनेंस को, ठीक है। क्या हो गया ये? एनी सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डेनियल और फोरबियरेंस। सेल्फ डेनियल को अभी तक हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, और किसी भी तरीके के सेल्फ रिस्ट्रेंट को, फोरबियरेंस को और सेल्फ डेनियल को हम एब्स्टिनेंस बोलते हैं। बहुत डिटेल में अभी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और कुछ लोग क्या होता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस की यूज से अपने आप को बचाते हैं, तो उसको भी एब्स्टिनेंस कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ ड्रग एज एल्कोहल और हीरोइन ऑन विच वन इज डिपेंडेंट। तो कोई एक है पर्सन जो उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, अगर वो उसको बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दे और उसको ना यूज़ करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एब्स्टिनेंट बोल देंगे, या फिर एब्स्टिनेंस बोलेंगे, एक ही बात है, ठीक है। फिर आगे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे बड़ी बात एब्स्ट्रैक्ट ये है कि आप एब्स्ट्रैक्ट को एक नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट को, और आप एब्स्ट्रैक्ट को एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा थॉट ऑफ अपार्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट रियलिटीज, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और एक्चुअल इंस्टेंसेस, या फिर थ्योरेटिकल, नॉट अप्लाइड और प्रैक्टिकल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूस, या एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स अपार्ट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस सच एज जस्टिस, पॉवर्टी एंड स्पीड। यानी कि यार अगर आपने मान लीजिए किसी चीज़ को थ्योरी में पढ़ा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप साइंस पढ़ते हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में, NCERT से आप साइंस पढ़ते हैं। अब साइंस को पढ़ते वक्त आपने उन कंसेप्ट्स को पढ़ा तो किताबों में, लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं एक्सपीरियंस किया, उनको प्रैक्टिकली नहीं देखा, तो आपने उनको बस किताबों में पढ़ा, तो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस पढ़ी, उसको प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई नहीं किया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। यानी किताबी भाषा में किसी चीज़ को देख लेना, कि कंक्रीट रियलिटीज, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, और या फिर उसको एक्चुअली होते हुए नहीं देखा आपने, वो जो है वो बस आपने पढ़ लिया, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूस, ठीक है। इसका जो स्पेलिंग है वो है ABSTRUSE, ABSTRUSE। इसका मतलब है हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सीक्रेट, हिडन, यानी किसी भी चीज़ को मुश्किल से समझना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से समझ में नहीं आए, बहुत मुश्किल समझ में आ रही है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो दैट इज एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE।